संकट के दिन आए, के संकट के दिन आए, सिवा तेरे कहाँ जाए, सिवा तेरे कहाँ जाए। तू आंसू, तू आंसू, तू आंसू ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಈ ಭಾನುವಾರದ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕರೆಂಗೆ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಸೀನನಾಗಿರುವಾತನೇ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಎತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಯಜಮಾನನ ಕೈಯನ್ನು ದಾಸನ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಯಜಮಾನಿಯ ಕೈಯನ್ನು ದಾಸಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳು ನೋಡುವ ಪ್ರಕಾರವೇ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ನಮ್ಮ ಯೆಹೋವನ ದೇವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತವೆ. ಆತನ ಕಟಾಕ್ಷವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಯೆಹೋವನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಟಾಕ್ಷಿಸು, ಯೆಹೋವನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಟಾಕ್ಷಿಸು, ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಾದ ತಂದೆಯಾದಂಥ ದೇವರೇ, ಈ ದಿವಸ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಎತ್ತಿ, ನಿಜವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಯಜಮಾನನು ಒಂದು ದಾಸಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುತ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಯೆಹೋವ ಕಡೆಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಟಾಕ್ಷಿಸು, ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಅಪ್ಪ. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾವು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲಂಥ ದೇವರಾಗಿದೆ. ಈ ಕಠಿಣವಾದಂಥ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದ್ದಾಗಲೂ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಯೆಹೋವನನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸುವಂಥ ದಿವಸಗಳಾಗಿವೆ ಕರ್ತನೆ. ಕಷ್ಟಗಳ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವ ದೇವರು ತಾನು ಸಾಧಿಸುವಂಥ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ದಿವಸ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಎಬನೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸಹಾಯಕನಾಗಿದ್ದು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯೆಹೋವ ದೇವರು ಯೆಹೋವ ಈರೆ ಆಗಿದ್ದು ಆತ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಯೆಹೋವ ನಿಸ್ಸಿಯಾಗಿದ್ದು ನಮಗೆ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ
ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಳವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುವ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆನೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನೀಡಿ ನಡೆಸು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಒಂದೊಂದು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾವ ಯಾವ ಕುಟುಂಬಗಳು ಯಾವ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಕೆಲವರು ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿರಬಹುದು, ಅವರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸು. ಕೆಲವರು ಸ್ವಾಮಿ ಸಾಲದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿರಬಹುದು, ಅವರನ್ನು ನೀನು ಭದ್ರವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ನೀಡು. ಯಾರ್ಯಾರು ಹಣದ ಕೊರತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತವಕ ಪಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಸ್ವಾಮಿ, ಯೆಹೋವ ಈರೆ ಆಗಿದ್ದವರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡು, ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೊಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೊಸದಂಥ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಇನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ತವಕ ಪಡುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನೀನೇ ಅವರಿಗೆ ಎಬನೇಸರ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ, ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಸಹಾಯಕನಾಗಿದೆ, ನಡೆಸು. ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ, ಯವನಸ್ಥರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೀಡಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದೆನಿಸಲ್ಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನ ಆಹಾರ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೊಳಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ಕೇಡಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯವು ಬಲವು ಮಹಿಮೆಯು ಸದಾಕಾಲ ನಿನ್ನವೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಸತ್ಯವೇದದಿಂದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಿಲಿಪ್ಪದವರಿಗೆ ಬರೆದಂಥ ಪತ್ರಿಕೆ 2ನೇ ಸಂಧಿ 12ನೇ ವಚನದಿಂದ ಕೆಲವು ವಚನಗಳನ್ನು ನಾನು ಓದುತ್ತೇನೆ. The Gospel, Paul's letter to Philippians, chapter 2, verses 12 onwards. फिलिपियो 2 उसका 12 वचन से कुछ वचनों को हम पढ़ते हैं. ಹೇಗಿರುವಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ, ನೀವು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳಿದಂತೆ ಈಗಲೂ ಕೇಳಿರಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಿಗಲ್ಲ, ಬಹು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮನೋಭೀತಿಯಿಂದ ನಡುಗುವವರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರೇ ತನ್ನ ಸೂಚಿತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಗುಣಗುಟ್ಟದೆ ವಿವಾದವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. ಹೀಗೆ ನೀವು ನಿರ್ದೋಷಿಗಳು, ಯಥಾರ್ಥ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರು ಆಗಿದ್ದು ವಕ್ರ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವರ ಮೂರ್ಖ ಜಾತಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ನಿಷ್ಕಳಂಕರಾದ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಿರಿ ಎಂಬುದೇ. ದೇವರ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ आशीर्वाद नीडली। परमेश्वर का एक सेवक है जिनका नाम है डेव विलिस। वो ये कहते हैं, बी एन एनकरेजर, द वर्ल्ड हैज मैनी क्रिटिक्स। बी एन एनकरेजर, द वर्ल्ड हैज मैनी क्रिटिक्स। यानी कि आप प्रोत्साहन देने वाले बनो, क्योंकि दुनिया में निंदा करने वाले या फिर बुराई करने वाले बहुत है। और आज सच बात है, इस दुनिया में अगर हम चारों तरफ देखते हैं, इस महामारी के बीच, इस पैंडेमिक के बीच और इस लॉकडाउन के बीच में बहुत सारे चैलेंजेस के सामना करते समय आज हम प्रोत्साहन देने वाले बहुत ही कम लोगों को देखते हैं। बुराई करने, हर एक विषय को लेकर इश्यूज बनाकर उसके ऊपर चर्चा करने वाले बहुत है। सो व्हाट डू वी नीड इन द वर्ल्ड टुडे? आज दुनिया को क्या चाहिए? जिस तरह से डेव विलिस कहते हैं, द वर्ल्ड हैज ऑलरेडी क्रिटिक्स, सो द नाउ दे नीड एनकरेजर। आज जो है एनकरेज करने वालों को चाहिए। और आज प्रिय लोगों, इस दुनिया के अंदर ऐसे परिस्थिति में रहते समय कई बार हम
नेगेटिव एस्पेक्ट्स को लेकर के, नेगेटिव चीज़ों को लेकर ज़्यादा डिस्कस करते जाते हैं, और ये डिस्कस करते करते, ये बातें लोगों के सामने बांटते बांटते, चर्चा करते करते आज कई बार हम अपने आप में मायूस हो जाते हैं। और शैतान इसी बात को लेकर, इसी बात को जो है हमारे जीवनों में आक्रमण के रूप में इस्तेमाल करता है। आज हमारे दिमागों को जो है शैतान पूरी तरह से जो है इस बुराई में, क्रिटिसिज्म में, नेगेटिविटी के अंदर भरने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए प्रिय लोगों, आज इन सारी बातों को ना देखते हुए आज ये देखें कि हम किस तरह से प्रोत्साहन को लोगों को दे, या इस परिस्थिति के अंदर एक प्रोत्साहन का एनवायरनमेंट किस तरह से हम क्रिएट करें। आप कहेंगे या आज हम में से ही बहुत सारे लोग जो है निराशाओं में, तो हाउ वी हैव टू डू इट, किस तरह से हम करें। तो पहली बात यह है कि मैं और आप जो है खुद प्रोत्साहित हो जाए, खुद उत्तेजित हो जाए, खुद को जो है प्रोत्साहन देना, खुद को जो है बढ़ावा देना, खुद को जो है उबर कर आने का प्रयास करना है। हाउ टू डू दैट? इन द लॉर्ड, यानी कि परमेश्वर के अंदर मुझे और तुम्हें जो है एनकरेज करना है। यू एंड आई नीड टू एनकरेज आवरसेल्व्स इन द लॉर्ड। प्रभु के अंदर मुझे और आपको प्रोत्साहन देकर आगे बढ़ाना है। सो नाउ हाउ वी हैव टू डू इट, किस तरह से हम अपने आप को उत्तेजित करें या प्रोत्साहन करें। देयर आर 3 ways दैट वी हैव टू डू। 3 तरह से हम कर सकते हैं। पहला ये है कि चैलेंज योर इनवर्ड डिस्पेयर। चैलेंज योर इनवर्ड डिस्पेयर मतलब कि आप अपने अंदर जो हताशा है, जो निराशा है, उस बात को जो है आप चैलेंज कीजिए, उसको चुनौती दीजिए। आज बाहर की परिस्थिति आपको चुनौती देते समय आपका आत्मा, आपका दिल, आपका मन जब निराश होता है तो आप उस मन को जो है चैलेंज करना है, चुनौती करना है। और यही बात जो है दाऊद राजा किया था। भजन संहिता 42वां अध्याय 5वां वचन, Psalms 42 verse 5 में ये कहता है, Why are you cast down, O my soul? Why are you turmoil within me? आत्मा को, मन को जो है ये पुकार कर कहता है कि तू क्यों निराश है और क्यों मेरे अंदर जो है और जो है निराशा, हताशा में जी रहा है। होप इन गॉड, परमेश्वर के अंदर आशा बनाए रखे और फिर से उनकी स्तुति करे, क्योंकि वही हमारा उद्धार करने वाला, छुड़ाने वाला वही हमारा परमेश्वर है। तो आज मैं अपने अंदर रहने वाली आत्मा को जो निराशा करती है उसी को चुनौती देना बहुत ही जरूरी है। द सेकेंड वे ऑफ एनकरेजिंग आवरसेल्व्स, हम अपने आप को प्रोत्साहन देने के लिए दूसरा जो बात है वो ये है, कैप्टिवेटिंग द मेंटल स्ट्रॉन्ग होल्ड। हमारे कैप्टिवेटिंग द मेंटल स्ट्रॉन्ग होल्ड, कैप्टिवेट द मेंटल स्ट्रॉन्ग होल्ड मतलब हम अपने मन के अंदर रहने वाले कुछ विचारों को, जो स्ट्रॉन्ग होल्ड होते हैं, जो कैद करके पकड़ कर रखती है, उन चीजों को जो है हमें कैद करना है। द नेगेटिव थॉट्स, खास करके नेगेटिव थॉट, जो नेगेटिव विचार हमारे मन में आते हैं, नकारात्मक विचार जो हमारे मन में आती है, नकारात्मक सोच जो हमारे मन में आती है, नकारात्मक चीजें जो हमारे मन को झुंझलाती है, डराती है, उन सारी बातों को कैद करना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए पौलुस जो है 2 कोरिन्थियोस का 10वां अध्याय 4 और 5वें वचन में ये स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखता है कि जो हमारी कल्पनाएं और विचार परमेश्वर के विरुद्ध जाती है, उन सारी कल्पनाएं और उन सारे विचारों को कैद में कर लो कहकर कहता है। बहुत ही सुंदर वचन है। 2 कोरिन्थियोस 10वां अध्याय 4 और 5वें वचन के अंदर अगर हम देखते हैं तो वहां पर जो है बात को बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि अपने मेंटल स्ट्रॉन्ग होल्ड जो भी है, नकारात्मक चीजें लाने वाले, उनको जो है हमें पकड़ कर रखना है। इसलिए एक परमेश्वर का दास इस तरह से कहता है, when you are going through the hard time, challenge your inner mind and take those negative thoughts captive। यानी कि आप हर एक कठिन परिस्थिति से गुजरते समय अपने मन को जो है आप चैलेंज करें, उसके विचार को चैलेंज करें और उसको कैद करके पॉजिटिव थॉट्स को रिलीज करते जाए। तीसरा, हम किस तरह से परमेश्वर के अंदर उत्तेजित पाना है वो ये है, थर्ड इज gaze at God and glance at life। gazing at God and glancing at life। हिंदी में बहुत ही अच्छा, इंग्लिश में बहुत ही अच्छा शब्द है gazing। gazing का मतलब होता है कि हम कोई भी चीजें जो है देखते समय, वहां पर उनको देखने समय उनसे हम कुछ अपेक्षा करते हैं। gazing, कुछ चीजों को देखना, देखते समय कुछ चीजें हम पा रहे हैं या फिर कुछ
आ रहा है तभी हम उनके तरफ ज्यादा देखते हैं. सो इट इज सेइंग दैट यू आर गेजिंग एट गॉड, यू हैव टू गेज एट गॉड और ग्लैंस एट लाइफ. ग्लैंसिंग का मतलब क्या होता है? खाली देखना, इधर उधर से जस्ट पलट कर, पन्ना पलट कर हम देखते हैं, उसको हम कहते हैं ग्लांसिंग. जस्ट आपने एक किताब को पढ़ा क्या? नहीं, मैंने सिर्फ ग्लांस किया है, मैंने सिर्फ देखा है, एक नजर डाली है. तो ऐसे समय पर हम क्या कर रहे हैं पता है? हम परमेश्वर के ऊपर केवल नजर डाल रहे हैं, लेकिन लाइफ के ऊपर गेस कर रहे हैं, सिचुएशन के ऊपर गेस कर रहे हैं. तो आज जरूरी है कि मैं और आप जो है, वी शुड गेज एट गॉड, परमेश्वर के ऊपर जो है देखते रहे, अपेक्षा करे, और लाइफ जो चल रहा है इसके ऊपर ग्लांस करें. नो प्रॉब्लम, इट विल गो अवे. इस बात से जो है हमें आगे बढ़ना है. सो परमेश्वर का दास, एक A.W. टोजर नाम का परमेश्वर का एक दास है, वो ये कहते हैं, जब हमारे जीवन के अंदर हम बहुत ही एम्प्टी हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, तब हमारा लाइफ जो है, हमारा जीवन जो है बड़ा दिखने लगता है, बलून की तरह बढ़ते जाता है, एक्सपांड होते जाता है. और तब उस समय जो कुछ भी चीजें हम देखते हैं, हमें वो सारी चीजें बड़ा दिखने लगता है. तो ऐसे समय पर हम क्या करना है? उन बड़े चीजों को ऊपर देखना नहीं है, बल्कि आज उससे भी बड़ा जो है वो है परमेश्वर, उसके ऊपर देखना है. सो लेट अस गेज एट गॉड एंड ग्लांस एट दिस सिचुएशन. तो आज अपने आप को जो है हम इस तरह से उत्तेजित कर सकते हैं या फिर प्रोत्साहन कर सकते हैं. मैं और आप प्रोत्साहन होने के बाद हर एक विश्वासी का ये कर्तव्य बनता है, या ऑब्लिगेशन हो जाता है कि दे हैव टू एनकरेज वन अनदर. दूसरों को प्रोत्साहन देना बहुत ही जरूरी है करके हम देखते हैं. पहला थिस्सलुनीयों उसका 5वां अध्याय 11 और 14 वचन ये कहता है, आप इसीलिए एक दूसरे को प्रोत्साहित करो, एक दूसरे को बांधते जाओ, एक दूसरे को जो है आप करेक्शन करते जाओ, और जो कमजोर है उनको उठाओ, और हर एक के साथ धीरज धरकर चलो कहकर. देयर आर वर्ड्स विच आर यूज्ड अगेन एंड अगेन. वहां पर कई शब्दों का इस्तेमाल किया गया है. एनकरेजिंग, एडमोनिशिंग, हेल्पिंग, पेशेंस, ये सारी बातें जो है, इट इज ऑल टॉकिंग अबाउट द एनकरेजमेंट, एडिफाइंग, यानी कि एक दूसरे को बढ़ाना या प्रोत्साहन देने के बारे में इस बात को बताती है. प्रिय लोगों, दूसरा और एक वचन हम जब देखते हैं, इब्रानियों उसका 3 अध्याय 13 वचन ये कहता है, encourage one another day after day, still it is called as the today, otherwise your heart will be hardened by the deceitfulness of sin. इन दिनों में जो है, आज का दिन है सोचकर हमें क्या करना है? प्रोत्साहन देना है, और इस पाप की वजह से, पाप करते करते अपने आप को कठोर नहीं करना है. कई बार ऐसा हो सकता है कि पाप के छल में गिरकर, कपट में गिरकर हम अपने आप को कठिन बना ले और पाप में ही रह जाए. इसीलिए हमें प्रोत्साहन देना है कि उसके अंदर ना रहे, यीशु मसीह के अंदर हम बनते जाए. इब्रानियों उसका 10वां अध्याय 25वां वचन ये कहता है, Hebrews 10:25 से, कि आप जो है इकट्ठा होना आप ना छोड़े, जो आपकी आदत है, यानी कि फेलोशिप करना ना छोड़े, और एक दूसरे को प्रोत्साहन भी दे, क्योंकि यीशु मसीह का आने का दिन जो है निकट है, और इसीलिए प्रोत्साहन देते रहो. ऑल दिस टॉक्स अबाउट एनकरेजिंग वन अनदर. एक दूसरे को प्रोत्साहन देना जरूरी है. मैं अपने आप को प्रोत्साहन दिया, उत्तेजित पाया, अब दूसरा जो है मुझे दूसरों को प्रोत्साहन देने वाला बनना है. टुडे वी हैव टू बिकम एन एनकरेजर. आज मुझे जो है स्थिति के अंदर प्रोत्साहन देने वाला, बढ़ावा देने वाला बनना है, ना कि नकारात्मक, ना कि निंदा, ना कि जो है इश्यूज बनाने वाले व्यक्ति नहीं, बल्कि प्रोत्साहन देने वाले व्यक्ति बनना है. और इसीलिए हमने आज टाइटल भी दिया है, द हॉलमार्क्स ऑफ एन एनकरेजर. हॉलमार्क्स ऑफ एन एनकरेजर मतलब एक प्रोत्साहन देने वाले के क्या क्या गुण होने चाहिए. हॉलमार्क का मतलब होता है एक चिन्ह होता है, एक पर्टिकुलर ब्रांड का है उनका एक हॉलमार्क. ओके, वो चिन्ह हॉलमार्क देखते ही पता चलता है कि ये कंपनी का है, ये ब्रांड का है, ये इनका है. ठीक उसी तरह से एक प्रोत्साहन देने वाले के हॉलमार्क से क्या है? बहुत सारे हैं, लेकिन मैं इन 4 बातों को बताना चाहूंगा. पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल इट सेज एन एनकरेजर एक्सेप्ट्स अदर्स एज दे आर. एनकरेजर एक्सेप्ट्स अदर्स एज दे आर. हमेशा प्रोत्साहन देने वाले सामने वाले को वे जैसे हैं वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं. यीशु मसीह जो है एक पापिनी स्त्री को, एक व्यभिचारिणी स्त्री को उनके पास लेकर आए. लोग उनको पत्थरवा मारकर उनको सजा देना चाहते थे. तब यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई तुम में से
पापी नहीं है, पाप नहीं किया है, वो पहला पत्थर मारे। और सभी लोग चले जाते हैं और स्टोरी कट करने के लिए मैं यहाँ पर एक कहता हूँ, उनको कहता है तुम जा और आपसे पाप ना कर। एवरीबडी वांटेड टू क्रिटिसाइज हर, सभी लोग जो है उनकी निंदा करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह उस स्त्री को देखकर उन्होंने प्रोत्साहन किया कि अभी पाप इसके आगे पाप मत कर। ठीक उसी तरह से और एक व्यक्ति को हम देखते हैं जिनका नाम है बारनबास। बारनबास का मतलब ही, मीनिंग ही ये है द सन ऑफ एनकरेजमेंट, यानी कि प्रोत्साहन देने वाले का पुत्र। इस तरह से द सन ऑफ एनकरेजमेंट, बारनबास इज द सन ऑफ एनकरेजमेंट। वेरी ब्यूटीफुल लाइफ स्टोरी है उनके। और अगर आप पढ़ते जाएंगे पूरा प्रेरितों के काम के अंदर, बारनबास और पॉल करके इस तरह से कई जर्नी उन्होंने की है। बट यू नो, पॉल जो है, पॉल इतना बड़ा व्यक्ति, एक मिशनरी व्यक्ति बनने का कारण कौन था? बारनबास था। बारनबास वाज द मेन रीजन बिहाइंड द पॉल। पॉल के पीछे जो है ये व्यक्ति थे। बारनबास ने जो है पॉल को पकड़कर लेकर आया जब लोग उसे स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थे। प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय 21वां वचन, प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय 27वां वचन। When nobody was accepting Paul, Barnabas went and brought Paul to him. पॉल उसको जो है उन्होंने लेकर आए और उनके साथ में मिलकर उन्होंने सेवकाई को प्रारंभ किया करके देखते हैं। So whatever they are, as they are, people है, जिस तरह से क्यों ना हो, उन लोगों को हमें उनकी परिस्थिति में उनको हमें स्वीकार करना है। ये पहला गुण है। सेकेंड, the encouragers gives freely of their resources. Encouragers gives freely or generously their resources. प्रोत्साहन देने वाले हमेशा उनके पास जो कुछ भी स्रोत है, जो कुछ भी उनके पास है, वो सारी चीजें जो है वो बांटते हैं, दूसरों को देते हैं। प्रेरितों के काम उसका 4वां अध्याय 32 से 37 वचन के अंदर हम देखते हैं, आदि काल की कलीसिया जो है अपने सारे प्रॉपर्टीज को बेचकर उन दिनों में, उस समय पर प्रेरितों के पास लेकर आके रख दिए। और जब जब जिन जिन लोगों को जैसा जैसा जरूरत थी, परिवार के लोग आकर वो जरूरत के हिसाब से वहां से उन लोग पैसे लेते और अपने दैनिक विषयों के लिए और सेवा के लिए उसे इस्तेमाल किया जाता। ठीक उसी तरह से उन्हीं दिनों में बारनबास, जो अभी मैंने कहा, उन्होंने भी अपने पास एक छोटी जमीन थी, उसे बेचकर वो पैसे लेके आकर प्रेरितों के चरणों में उन्होंने रख दी करके हम देखते हैं। सो दे ऑलवेज शेयर। एनकरेजर्स, जो प्रोत्साहन देने वाले हैं, बढ़ावा देने वाले हैं, उनके पास जो कुछ भी है वो दूसरों के लिए, मददगार के लिए देने के लिए तैयार है। गिविंग द रिसोर्सेस, आपके पास जो कुछ भी है वो सारे स्थिति को हमें देना, सारी बातों को देना हमारे लिए जरूरी है। तो ये प्रोत्साहन देने वाला व्यक्ति होता है। एन एनकरेजर्स एक्सेप्ट्स एज दे आर, एंड एन एनकरेजर्स गिव्स फ्रीली ऑफ द रिसोर्सेस। तीसरा हॉलमार्क, थर्ड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है, एनकरेजर्स गिव्स अदर्स अ सेकंड चांस। प्रोत्साहन देने वाले दूसरों को जो है एक सेकंड चांस देते हैं। एक बार गलती किए, ठीक है, उनको वहीं पर छोड़ देना नहीं है, बल्कि उनको वापस खड़ा करना है। टू एनकरेज, कम ऑन, डोंट वरी, आइए वापस से जाएंगे। इस तरह से यीशु मसीह, सोचिए अगर पतरस ने यीशु मसीह को 3 बार तिरस्कार करके छोड़ दिया और पतरस वापस अपने मछुआरे के लिए लौट गया था, यीशु मसीह वापस एक पतरस के पास जाकर उनसे ये कहलवाता है, क्या तुम मुझसे प्यार करता है? 3 बार उसे वो वापस से कहलाता है और अंगीकार कराता है कि डू यू लव मी? पतरस कहता है, हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। और उसके बाद उनको कहता है कि जा तू मेरे लिए सेवा कर, या फिर मेरे बेड़े को चरा कहकर कहता है। अगर सोचिए उस समय पर यीशु मसीह अगर पतरस के पास जाकर सेकंड चांस नहीं दिया होता, व्हाट वुड हैव हैपेंड? पतरस एक समय पर खड़े होकर जब प्रचार किए 3000 लोग, दूसरे समय पर खड़े होकर प्रचार किए 4000 लोग, इस तरह से हजारों की संख्या में लोग जो है यीशु मसीह को अपनाकर अपने जीवन में आए, because of the second chance that Jesus gave to Peter. You know, encouragers give the second chance. Barnabas, let us talk about Barnabas. Barnabas also gave a second chance to one more person. Who was that? You know, John Mark. John Mark को जो है उन्होंने दूसरा चांस उनको दिया। प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय 23 से वचन से 13वां अध्याय 13 वचन के अंदर हम पाते हैं। प्रेरितों के काम 15वां अध्याय 36 से 41 के अंदर हम पाते हैं, जहां पर बारनबास जो है जॉन मार्क के विषय में बातें करते हैं। क्या है जॉन मार्क? कौन है
जॉन मार्क भी जो है बारनबास के द्वारा, पौलुस की सेवकाई के द्वारा आया हुआ एक व्यक्ति है, जवान व्यक्ति है, यीशु मसीह के पीछे चल रहा है। अब ये तीनों मिलकर एक मिशनरी जर्नी पर गए हैं। लेकिन क्या हुआ, पैम्फिलिया नाम के जगह पर, वो समुद्र के तट पर उन लोग जाने के बाद वहां से आते समय पर क्या हुआ पता है, बारनबास और पौलुस और दूसरे यात्रा पे और दूसरे शहर में निकल गए मिशनरी जर्नी करते करते। वो जो है सेवकाई में वहां से रिटर्न आ गए। कौन? जॉन मार्क। रिटर्न आने के बाद वापस से जब सभी लोग वापस से यरूशलेम में इकट्ठा हुए, पौलुस, बारनबास, फिर से जॉन मार्क, सभी लोग, सभी शिष्य लोग, और उन लोग ये चाहते थे कि सेकंड मिशनरी जर्नी जाए। जाने से पहले तब उन्होंने कहा, बारनबास ने कहा, हम जॉन मार्क को साथ में लेते हैं। तब पौलुस कहता है, नो, वी विल नॉट टेक जॉन मार्क। हम जॉन मार्क को अपने साथ नहीं लेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें बीच में मिशनरी जर्नी में छोड़कर आए हैं, वो सेवा के लिए फिट नहीं, इसलिए हम उनको नहीं लेंगे। बारनबास ने क्या किया पता है, नो, वी विल टेक, हम उनको लेकर जाएंगे। और इतना वाद विवाद ज्यादा हो गया कि बारनबास जो है जॉन मार्क को लेकर निकल गए, पौलुस जो है सीलास को लेकर दूसरे रास्ते पर निकल गए। दोनों अलग टीम होकर, सेवा तो बढ़ती गई, ऑफकोर्स बढ़ गया, लेकिन बारनबास ने जो है जॉन मार्क को एक मौका दिया, सेकंड चांस दिया। अगर वहां पर नहीं दिया होता, स्कॉलर्स ये कहते हैं जॉन मार्क की और कोई नहीं, मार्क रचित सुसमाचार लिखा हुआ मार्कुस है। और ये मार्क रचित सुसमाचार को हम बहुत ही ऑथेंटिक मानते हैं सारे सुसमाचारों के अंदर, जो यीशु मसीह के बारे में और पूरे सुसमाचार के बारे में लिखा गया है। द मार्क्स गॉस्पेल इज द ओल्डेस्ट गॉस्पेल इन द बाइबल और इन दैट सोर्स। और इन बात को अगर हो गया तो सोचिए, अगर बारनबास उस टाइम पर अगर उनको एनकरेज नहीं किया होता तो क्या होता। टुडे वी नीड द एनकरेजर्स हु कैन गिव द सेकंड चांस, तो दूसरा सेकंड चांस दे। फोर्थ हॉलमार्क, चौथी जो है बहुत इंपॉर्टेंट वो ये है, एनकरेजर्स आर अनसेल्फिश। एनकरेजर्स आर अनसेल्फिश। प्रोत्साहन देने वाले स्वार्थ के बारे में नहीं सोचते हैं। फिलिपियोस का 2 अध्याय 3 वचन में हमने अभी पढ़ा है कि डू नथिंग आउट ऑफ सेल्फिश एम्बिशन, अपने स्वार्थ के हित को लेकर जो है आप कुछ भी काम ना करें, बल्कि दूसरों को अपने से बेहतर जानकर उनकी सेवा करे, कहकर वचन कहता है। तो प्रिय लोगों, आज यहाँ पर अगर हम देखते हैं, हमें प्रोत्साहन देने वाले आज अनसेल्फिश बनकर दूसरों के बारे में, हमारे सराउंडिंग में, हमारे आसपास में लोगों के बारे में सोचना है। प्रोत्साहन देने वाले ऐसे सोचते हैं। साधु सुंदर सिंह के बारे में कहकर मैं समाप्त करना चाहूंगा। साधु सुंदर सिंह एक बार अपने रास्ते चल रहे थे, अपने सेवा करते समय पर ठंड का मौसम था, चारों ओर जो है बर्फ गिर रही है, और उसी रास्ते में वो चलते समय पर ऐसा हुआ कि इतना ज्यादा बर्फ होने लगा कि लोग जहाँ पर रास्ते पर नहीं थे, सभी लोग इधर थे। लेकिन तब उसी रास्ते पर जाते समय उन्होंने क्या हुआ पता है, देखा कि एक व्यक्ति जो है वहां पर रास्ते में पड़ा हुआ है, उस बर्फ के अंदर, उसके यहाँ पर उसी रास्ते में। जब उन्होंने जाकर देखा पास में कि व्यक्ति के सांसें चल रही है, तो उन्होंने किसी भी तरह से अपने आप को जो है ये किया और उनको उठाया, अपने कंधे पर डाला पीछे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अरे मुझे ही कठिन है इस बर्फीले रास्ते में अकेले चलने के लिए, मैं इसे कहाँ पर लेकर चलूं। और उन्होंने अपने कंधे पर लेकर चलते चलते उन्होंने अपने डेस्टिनेशन यानी कि ऊपर पहुंच गए, जहां पर पहुंचना था। पहुंचने के बाद वो ये कहता है, ये लिखा गया है कि साधु सुंदर सिंह उस व्यक्ति को अपने कंधे पर लेने के वजह से इनकी गर्माहट और उनकी गर्माहट, शरीर की गर्माहट एक दूसरे को गर्म रखकर वो जो रास्ता जो था ठंड के मौसम में, उस रास्ते को चलने के लिए उन्हें मदद किया। साधु सुंदर सिंह वहां पर स्वार्थी होकर अरे जाने दो, मुझे ही तकलीफ है, मैं उसको कहाँ लूं कहकर गया होता तो वो वहां पर ऊपर नहीं पहुंचते। तो प्रिय लोग, आज मैं बताना चाहता हूं कि प्रोत्साहन देने वाले अपने बारे में नहीं, लोगों के बारे में सोचकर जब हम चलते हैं, वही लोग जो है हमारे लिए सहायता का कारण बनते हैं। सो टुडे वी नीड द एनकरेजर्स। आज प्रोत्साहन देने वाले लोग हमारे लिए जरूरत है। सो लेट अस बिकम एन एनकरेजर्स, लेट अस एनकरेज आवरसेल्व्स। आइए हम अपने आप को प्रोत्साहन दे, दूसरों को प्रोत्साहन दे और प्रोत्साहन देने वाले बने। क्यों? क्योंकि आज दुनिया को निंदा करने वाले, बुराई करने वाले की जरूरत नहीं है, बल्कि प्रोत्साहन देने वाले की जरूरत है। क्या हम प्रोत्साहन देने वाले बनना चाहते हैं? आइए हम प्रार्थना करें। ಪ್ರಭು ಯೇಸು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಯೇಸುವೆ, ನಾವು ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಈ ದಿವಸ ನಾವು ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಚನಗಳನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನಮಗೆ ನೀಡು. ಕರ್ತನೆ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ನೀಡುವಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡು. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್.
ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ಸಭಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು. ನಮ್ಮದು ಭಾನುವಾರದ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಬುಧವಾರದ ಆರಾಧನೆಯು ಸಾಯಂಕಾಲ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. MYF ಮತ್ತು TCF ಕೂಟ ಇದು ಝೂಮ್ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ದಿವಸ ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ सूचनाಗಳು, इंपॉर्टेंट सूचना जो है, अगर किसी को बैप्टिज्म बच्चों के लिए, खास तौर से स्कूल के एडमिशन्स के लिए अगर किसी को बैप्टिज्म चाहिए अर्जेंट में, तो हम उन्हीं बच्चों को बैप्टिज्म देंगे चर्च के अंदर. लेकिन पहले आपको इंटीमेट करना है अपने उग्राणी और मुझे. नेक्स्ट अनाउंसमेंट जो है, GNM नर्सिंग के फॉर्म्स सोमया कॉलेज और होली फैमिली कॉलेज के विद्या विहार में यहाँ पर निकला हुआ है. जिनको भी 12th पास हुए हैं, 12th किए हैं, वो लोग उसमें भर सकते हैं. फॉर्म्स अवेलेबल है सोमया कॉलेज और होली फैमिली कॉलेज, ये दोनों के तरफ से GNM कोर्स अवेलेबल है. और अगर किसी को प्रेयर की ज़रूरत है, प्रार्थना की ज़रूरत है, तो वो लोग फ़ोन पर मुझसे बात कर सकते हैं. वी विल कंटिन्यू टू प्रे और एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करते रहे. और लॉकडाउन जो बढ़ गई है, 3rd वेव आने की आशंका है, इन सारी बातों के लिए हम प्रार्थना करते रहे. आइए हम प्रार्थना करें. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಾದ ತಂದೆಯಾದಂಥ ದೇವರೇ, ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ನನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ, ನಾವು ಸಹ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವೆಲ್ಲರನ್ನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನೆ ಕೊಡುವಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು. ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರುವಾಗ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ವಿಸ್ತಾರಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸು. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ಏ ದೇವ್ಯವಾದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಬದಲೇನು ಕೊಡುವೆ, ಸಂಪತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಯಾವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಾಗ್ಯೋ ಏನು ಸಾಲದು. ಆಮೇನ್. ತಂದೆ, ಮಗ, ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ತ್ರೈಕ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಸದಾಕಾಲ ನೆಲೆಯಾಗಿರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್. ಆಮೇನ್.